وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جیسے پہلے اتنا پڑھ چکے تھے، اس کے آگے آج پڑھیں گے۔ پہلے پڑھے تھے، اس سے پہلے شروع سے رکھتے ہیں، حرکت پڑھے تھے، حرکت اور متحرک پڑھے تھے، مجرور پڑھے، اس کے بعد مفتوح پڑھے، مجموم پڑھے، ساکن پڑھے، مشدد پڑھے۔ ٹھیک، اتنا ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں آگے۔ آگے ہے تنوین، نون، تنوین، مذکر، مؤنث، ٹھیک ہے، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم اور واحد، تثنیہ، جمع، اسم جمع اور کلمہ۔ آج اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ اتنا سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، تو آج صرف اتنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اچھے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مشدد کے بعد تنوین۔ یہ آپ قاعدے میں پڑھے ہوں گے۔ تنوین کیا ہوتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، کیا ہوتے ہیں؟ وہ تنوین ہوتے ہیں، بس اسی کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں تو کیا کراتے ہیں؟ تنوین کرناتے ہیں، بس اتنا ہی۔ اب جیسے کہ کلمہ لیتے ہیں محمد، کیا؟ محمدن، ٹھیک ہے، محمد لکھیں، محمدن، اس میں کون سا کلمے میں تنوین لگا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں دال کے اوپر تنوین ہے، ٹھیک ہے، کس پہ؟ دال پہ، محمدن، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو محمد ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے محمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تنوین ہے تو کیا ہو گیا؟ محمدن، ٹھیک۔ انشاءاللہ اتنا سمجھ آ گیا، اور آپ کو جب بھی سمجھ نہیں آتا وہ پوچھ لیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جوم پر بھی کلاسز ہوتا ہے، تو آپ جوم کا کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک۔ تو تنوین کیا ہوتا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کرتے ہیں، بس اتنا سمجھنا ہے۔ نون تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہی چیز ہے کہ تلفظ میں جب نون کی آواز آئے، ٹھیک ہے، کیا ہو؟ نون کی آواز آئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے نون تنوین۔ جیسے حمزہ دو زبر ان، ٹھیک ہے، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں حمزہ دو زبر ان، اور اسی میں کہتے ہیں، ایسے اس کو اگر نون کی آواز نکالتے ہیں اس سے ہوتا ہے حمزہ دو زبر ان، اور حمزہ نون زبر ان بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے؟ اس میں نون کی آواز، کیا؟ ان، نون کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ان، ان، ٹھیک، اس میں نون کی آواز آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نون تنوین، ٹھیک، بہت آسان ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مذکر۔ مذکر کیا ہے؟ اس میں آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، مذکر کسے کہتے ہیں؟ اس میں دیا ہے مذکر، نر کو مذکر کہتے ہیں، ٹھیک، جیسے کہ مذکر اور مونس، اور مادہ کو مونس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مثلا دیا ہے مذکر یعنی مرد، اور مونس کا دیا ہے عورت، ٹھیک ہے۔ تو اتنے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم اس کو یوں سمجھے تو جیسے میل فیمیل ہو گئے، ٹھیک، استرلنگ پولنگ، ٹھیک، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، آسانی ہوتی، ٹھیک ہے، مذکر پولنگ اور مونس استرلنگ، ٹھیک، ایسا سمجھیں گے اور بھی آسانی ہوگی، جس سے ہندی انگلش سے سب، جیسے کہ آپ کو ایسا سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے جتنا آتا ہے اتنا انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو اچھا سمجھا سکوں، ٹھیک۔ مذکر سمجھ آ گیا، مونس بھی سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حاضر، حاضر کیا ہے؟ حاضر تو ابھی
जान मतलब आपस में बोलने की चीज़ है कि वो हाजिर हैं वगैरह, ठीक है। तो कोई चीज़ सामने हो तो उसी को हम हाजिर कहते हैं, ठीक है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो आम ज़बान में सब बोले जाते हैं, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं गैब। गैब क्या है? गैब जो मौजूद नहीं है, हाजिर यानी जो मौजूद है, और गैब जो हाजिर नहीं है, ठीक है। जो शख्स है मौजूद है उसे हाजिर कहते हैं। जैसे मसलन तुम कहें, ठीक है, ठीक है, जो सामने होता है उसको तुम कहते हैं, ठीक है, यह कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? हाजिर है। और गायब क्या है? जो कि मौजूद ना हो, सामने ना हो, उससे क्या कहते हैं? गायब कहते हैं। जैसे वो, ठीक है, वो कहेंगे, उस कहेंगे, ठीक है। तो ये सब वो उस ये सब कहते हैं जो कि हाजिर नहीं हो, ठीक है। ये सब क्या है? गायब है, जो मौजूद नहीं है, ठीक है। आगे मुतकल्लिम। मुतकल्लिम यानी मैं, हम, ठीक है, जो कि खुद कलाम करने वाला हो, उससे क्या कहते हैं? ये मुतकल्लिम है। जैसे हम कहते हैं अपने आप को मैं, ये आगे जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको फहमुल कुरान के कोर्स में मिलेंगे, आपको इसको और भी अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वाहिद। वाहिद क्या है? अकेला है, ठीक है। इतना इंशाल्लाह आपको समझ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए ज़्यादा नहीं है। वाहिद। वाहिद यानी अगर कोई एक है, ठीक है, एक चीज़ को वाहिद या मुफर्रिद कहते हैं, ठीक है, इसको मुफर्रिद बोलते हैं। जैसे कि ये अकेला है। जैसे रजुलन, एक आदमी, एक मर्द। रजुल यानी होता है मर्द, आदमी, ठीक। तस्निया। वाहिद यानी अकेला हो गया, एक। तस्निया दो चीज़ों को कहते हैं। जैसे रजुलानी, दो मर्द, ठीक है। और जमा क्या है? तीन या तीन से जायद हों, ठीक है, दो से ज़्यादा हों, या भी एक हैं, तीन या तीन से ज़्यादा हों तो क्या कहते हैं उनको? ये जमा है, ठीक है। जैसे रिजालुन। रिजाल क्या है? बहुत से आदमी, ठीक है, बहुत से मर्द, ठीक। जिसको हम और से कहें तो जैसे एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे समझ में आसानी हो, इसको जैसे अकेला है तो वाहिद, ठीक है, और दो हैं तो अदद में दो हैं तो हो गया तस्निया, और अदद में तीन या तीन से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? वो जमा। अब आइए अगला है इस्म जमा। इस्म जमा क्या है? इस्म जमा यानी जैसे कि वह लफ्ज़ है, जैसे कि कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वो दिखने में, वो बोलने में क्या होता है कि वो लगता है कि वाहिद है, ठीक है, लेकिन उसके मफ़हूम में, ठीक है, जमा पाया जाता है। जैसे कि हम अभी आप देख सकते हैं सामने लिखा कौमुन, कौम, ठीक है। ये कौम एक कौम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक कौम है, ठीक है, कौमुन। तो कौम है, लेकिन ये जो कौम है इसमें मफ़हूम क्या है? कोई एक शख्स हो, कोई एक चीज़ हो, तो उससे तो कौम कहते नहीं, ठीक है। कौम में बहुत से लोग होते हैं तो वो होता है कौम, एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में बोलना तो ग्रुप है, तो उसको हम ग्रुप्स नहीं बोल रहे हैं, इसको जमा नहीं कहते, उसका हम तो ग्रुप है, ये भी वाहिद है, ठीक है। तो कौम एक वाहिद, बोलने में, लिखने में वाहिद है, लेकिन इसका जो मफ़हूम है वो क्या है? वो जमा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इतना समझ आ गया अच्छे से। तो ऐसे कलिमा जो कि वह लफ्ज़ जो कि बोलने में वाहिद हो और उसका मफ़हूम जो हो वो हो जमा, ठीक है, वो क्या है? इसमें जमा, ठीक। इंशाल्लाह आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक। जैसे कि इंग्लिश के कुछ लें तो ज़्यादा दूर नहीं आते, अल्फ़ाबेट तक देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, कुछ कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये जमा में नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स नहीं कहते, अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये नहीं कि ए अलग एक अल्फ़ाबेट है, बी एक अल्फ़ाबेट, ऐसा नहीं होते हैं ना, ठीक है। ये मैं मिसाल पर समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक। तो ये से लेकर के जेड तक के सब मिला करके क्या होते हैं?
अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जबकि हाँ उसमें कितने लेटर्स, ठीक है, इतने सारे लेटर्स हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या बोलते हैं, वो तो है तो जमा ना, 3 या 3 से ज़्यादा हो तो जमा हो जाते हैं, लेकिन सुनने में लगता है कि अकेला है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग गलत बोलते हैं, ठीक है। वो सब इंशाल्लाह वो सब बाद में देखेंगे। इसमें पहले हम ये देखते हैं कलिमा। अगला क्या है, कलिमा। कलिमा क्या है, इसे हम इजी तौर पर कहें तो आसानी देंगे कि हर बामानी लफ्ज़ कलिमा है, ठीक है। हम जो कुछ भी बात करते हैं वो अगर बामानी लफ्ज़ है, ठीक है, जिससे कि साफ साफ मतलब समझ आ जाता है, वो क्या है, वो सब कलिमा है, ठीक। एक होता है कलिमा एक मामूल, जैसे कि हम कुछ बातें करते हैं तो उसमें हम एक कलिमा इस्तेमाल करते हैं, एक मामूल भी लगाते हैं, जैसे खाना वाना, पानी वानी, ठीक है, बातचीत, ऐसे करके। तो ये जैसे खाना वाना कहें तो खाना तो समझ आ गया, लेकिन वाना क्या है समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है, जो खाना है वो क्या है, कलिमा है, ठीक है। पानी वानी, वानी तो समझ नहीं आया, लेकिन पानी समझ आ गया, ठीक है, पानी समझ आ गया। किसी से कह दो कि हमको वानी ला कर दो, तो वानी उसको क्या पता है क्या होता है, ये तो ऐसे बोल जाते हैं, उसके कोई माने नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो पानी कह जाता है ना, तो उसको तो सब समझ जाते हैं कि पानी क्या है, वानी कोई समझेगा नहीं, ठीक है। और खाना वाना कहे तो खाना तो सब समझ जाएंगे, वाना कोई नहीं, वाना होता क्या है, ठीक। तो ऐसे ही तो ये सब जो है ना, ये कलिमा है जो कि साफ समझ जाते हैं, ठीक है, बामानी लफ्ज़ हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, कलिमा है, बस ऐसे समझना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और इसकी 3 किस्में हैं, ठीक है, इसके 3 किस्में हैं, जिसका 3 अक़साम है, ठीक। इसके 3 अक़साम क्या है, पहला है इस्म, दूसरा फ़िल, तीसरा हर्फ। इंशाल्लाह आगे समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको बार बार पढ़ें और आगे देखें, इंशाल्लाह कल तक आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।